हम सीधे रुख करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही का। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को लेकर इस वक्त हंगामा हो रहा है राज्यसभा में। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी ज्यादा गिरावट। If all of you stand up and shout, what can I do? I cannot understand anything. I am not able to understand anything. All of you are. What is your problem? साध्वी के बयानों को लेकर संसद में जोरदार हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही जहां पर कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं कि हंगामा किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिन्होंने विरोधियों को गाली दी दिल्ली की राजनीति को लेकर, इसके अलावा गैर हिंदुओं को लेकर ऐसा विवादास्पद बयान दिया है जिसे लेकर अब संसद के भीतर हंगामा हो रहा है। चेयर से कोशिश की जा रही है कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार को शांत करने की, लेकिन कांग्रेसी नेता इसे जोर शोर के साथ उठा रहे हैं। No, please take your seat. This is indiscipline. Please take your seat. Ashwani Kumar ji, please go to your seat. Malmali Khan, let me understand. I have not understood anything. All of you are shouting. I have not understood anything. All of you are shouting. If one of you can stand up and say, I can understand. If this is not the way. I have not understood anything. What is your problem? Yes. Mr. Anand Sharma, what is your problem? What is your problem? Yes. What is your problem? No. Yes. No, let me. Sir. What is the problem? I don't know. Sir, एक मिनट. Okay. Sir, they are only shouting. They are not telling. What can I do? No, sir. How can I listen to so many people? How can I listen to so many people? I can listen to one or two. ठीक है, बैठ जाओ भाई. I am also human being, only 2 years. I don't have so many years. Sir. Only Ravana was having 10 heads and 20 years. Sir. Not me. बताइए ना इसको. Let me listen to him. First I will allow you that. Ashwani Kumar, I called Mr. Anand Sharma. I've given a notice of. Yes, he has. एक मिनट. This is not. माननीय सभापति महोदय, सरकार के मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे. उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा. कई बार मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है. कल 2 मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है. मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए. ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं हैं. देश के प्रधानमंत्री संसद का अपमान करते हैं, कभी संसद में नहीं आते. सुनिए, दिल्ली से बाहर, देश से बाहर संसद चल रही होती है. कहाँ है प्रधानमंत्री? मिस्टर आनंद शर्मा, जानना चाहते हैं. हम ये जवाब चाहते हैं आज. I don't know. Yes. हम ये जवाब चाहते हैं. Okay. Yes. No. Sir, whether any minister has used indecent language in this house, then I will take note of that. Sir, can I say something? Yeah. Sir, what I am saying is you are right. You are right. If anybody uses indecent language in the house, we can take it up. Yeah. But if ministers, union ministers, speak in indecent language outside the house, then you have to see it. It is your job, not my job. No, sir. My job. Sir, my point is forget. Sir, my point is forget bringing black money from abroad. Bring a prime minister from abroad. Sir, please bring him here. Please.
please bring him here. We want to ask him, how are these ministers now members of his cabinet? How can I take? Sir, The point is, what the ministers have said is very serious. Please put on your mic. I'll tell you what they have said. कि रामजादे रहेंगे या हरामजादे रहेंगे राजनीति में. This Okay. is a very serious. I got your point. It is a very serious allegation, now I understood and the that point. is something Okay. that cannot be accepted. I got it. See, now please. Okay. No. Yeah. Zero hour is going to be the casualty. I can tell you. ये इतना महत्वपूर्ण मामला है श्रीमान. एक मंत्री देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए अगर असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, कि आदम गोंडमी साहब ने इसीलिए कहा था कि ये हमारी गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी. बीच में कहां से मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके माथे पर खिंची थी जेल की लंबी फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए. जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आ गए और इस तरह के बयान देते हैं. इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और किसी सीनियर मिनिस्टर को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे. Okay. Ashwani Kumar, yes. माफी मांगे. He has given notice. सर इसलिए मैंने कहा था कालाधन की बात छोड़िए. प्रधानमंत्री मैंने नोटिस दिया है, मेरा अधिकार है अपनी बात कहने का. आज आपने 72% लोगों को हरामजादा कह के पुकारा है. क्या ऐसी अश्लील भाषा देश के पार्लियामेंट्री इतिहास में पहले कभी इस्तेमाल की गई थी? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? कब तक देश आहत होगा? कब तक विभाजन की ओर चलेंगे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. सरकार इस्तीफा दे, मंत्री इस्तीफा दे, जवाब दे. जवाब देने से भाग नहीं सकते. ये राजनीति का सवाल नहीं, ये देश के लोगों की मान और मर्यादा का सवाल है. आप हमें रोकिए मत, आज हमें रोकिए मत, क्योंकि आज इनकलाब आने वाला है. देश के लोग पीड़ित हैं. आप हमारी बात कहने दे दीजिए. देश के बाहर ये बात जानी चाहिए. मैंने अपनी बात को कभी ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम गाली खाने के लिए राजनीति में नहीं आए. हम देश में अपना काम करने के लिए राजनीति में नहीं आए. आप You should know the rules. Now, honorable members, see, I agree that the ministers of government in India, or for that matter of a state, should use only decent language. I agree with that. But if a minister has said something indecent or otherwise outside, the chair can take cognizance only if it is uttered in this house. No, please. You don't allow me to complete. Let me complete. You know the rules. I have not completed. नरेश, मेरा बात पूरा करने दीजिए. मेरे को पूरा बोलने दीजिए. Allow me please to complete. Now please, the point I am only saying the position of the rule. You see, when you raise a matter like this, the chair can take cognizance only if it is uttered in the house. But there are provisions in the rule by which you can take up such issues. You do that. I have no problem. No, but now the matter is over. Now the matter is over. That's all. You go by the rules and do whatever you want. Now 0 hour. TNC ma. Now, I've gone to your. What is the risk? On this issue over. You will give notice.
On what? What is? I am not saying. See, now, Begin ji. Now, suniye. Begin ji. Now, I am not saying. No. I am no. Suniye. Now, listen. Issue is, and my request to you on this issue is to please grant a visa to the Prime Minister of India to come to Rajya Sabha. That is the issue. You have to grant him a visa. There are rules. Grant him a visa. There are rules. See, now, ठीक है. से बहन जी, यही बात. इसके बारे में मैं क्या करूं? नोटिस देना पड़ेगा. सर ये 0 आवर है और आपने 0 आवर में जितने भी मुद्दे और जितने भी विषय लोगों ने रखे हैं, कृपया उसको आप पहले बात तो स्पंज करें, क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया था और वो रिकॉर्ड में आया है, और वो बिल्कुल रिकॉर्ड में आया है. और जो नियम है, रूल के हिसाब से अगर उनको किसी मंत्री के आचरण पर चर्चा करनी है 238A उसके तहत चर्चा होगी सर. और मंत्री के आचरण पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नोटिस देने के बाद चर्चा करने को तैयार है. इनके मंत्रियों का क्या चल रहा है, इनके मंत्री किस तरह की भाषा बोलते रहे, किस रूप में बात करते रहे, इतिहास और भूगोल बताने की जरूरत है क्या? No, okay. Kumari Mayawati. Yes, Kumari Mayawati. Please. माननीय उपसभापति जी, Is it on this same subject? Yagi? माननीय उपसभापति जी, सेंटर की सरकार में एक महिला मंत्री द्वारा जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल विपक्ष को लेकर किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है. और इसके साथ साथ खास तौर से जो उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के लोग वो राम के भक्त हैं, उनको राम की औलाद मान के चलना चाहिए. मैं समझती हूँ कि जो हमारा देश का जो संविधान है तो वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, तो हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए. और उन्होंने ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारा जो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है. और इतना ही नहीं कि जब किसी भी पार्टी की सरकार बनती है सेंटर में, और सरकार बनने के बाद जब मंत्री ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं. लेकिन मंत्री पद के ऊपर बैठकर भारतीय संविधान के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है. केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए. और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए. और इतना ही नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है. उन्होंने जिस तरीके की विभिन्न बिंदुओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और भी कई मुद्दों पर बोला, उससे ऐसा लगता है कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है. इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. डॉक्टर TN Seema, 0 hour. थैंक यू सर. सर मैं क्या करना? What can I do? What can I do? For the government. What can I do? Sir, the least we demand is an
Now, Mr. Minister, please listen to the minister. Please listen to the minister. उपसभापति महोदय, No, please. उपसभापति Listen to the महोदय, minister. सदन में जिस मुद्दे को लेकर के Listen to चर्चा the हो रही minister. है, Why don't you जिस listen to the बयान को minister? लेकर चर्चा हो रही है, निश्चित तौर से उस बयान पर चर्चा करने के लिए Anyhow, please listen to the minister. Let us hear what he has to सदन say. के नियम है No, और उस व्यवस्था के see, तहत उस पर चर्चा हो The सकती है। हम courtesy उससे demands सहमत that हैं। you should listen जहाँ to the तक सवाल minister. है आदरणीय मायावती जी का, जहाँ तक सवाल है और जो माननीय सदस्यों का, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि शब्दों की शालीनता का सम्मान होना चाहिए और शब्दों की शालीनता का सम्मान केवल इधर से नहीं बल्कि उधर से भी होना चाहिए, क्योंकि शब्दों की शालीनता तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने बहुत बार किया है और कभी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने इस तरह की बात करी है। एक चीज, दूसरी चीज, उपसभापति महोदय, हम कभी भी ऐसी भाषा के से सहमत नहीं है। हम ऐसी भाषा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, चाहे कहीं से भी की जा रही हो। धन्यवाद। एक निवेदन है कि कृपा करके देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को सदन में लाएं, बुलाएं उनको सदन में। वो आए नहीं कभी सदन में, हमको चिंता है कहाँ हैं। नहीं देखा वो आए हैं, आपने देखा नहीं। आनंद शर्मा जी, आप देख नहीं पाए, आपकी नजरों का फर्क है। वो आए House is adjourned for 10 minutes. House is adjourned for 10 minutes. राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 10 मिनट के लिए जोरदार हंगामा हुआ है साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को लेकर। आपको बता दें, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे बयानों का हम समर्थन नहीं करते। सरकार ने किनारा कर लिया है, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से उनसे जवाब मांगा है। इतना ही ये कहा है कि इस तरह के मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और इसी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाषा की शालीनता को बनाकर रखना चाहिए और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे बयानों के साथ कभी सहमत नहीं हो सकती। अगर सही नियम कानून के तहत इस पर नोटिस दिया जाएगा तो फिर सरकार उस पर चर्चा के लिए भी तैयार है। 238A नियम का हवाला देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हंगामा जायज नहीं है। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, उनके विवादास्पद बयान को लेकर।